الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات گرامی، پیارے دوستو، پھر آ گیا عشر محرم. حسین پھر یاد آ رہے ہیں. آج ذکر حسین کی خاطر میں آپ سے مخاطب ہوں. ذکر حسین تا قیامت سیرت حسین کی ضرورت نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ساری انسانیت سیرت حسین کی محتاج ہے. اور فی الزمانہ اور اس کی شدت سے ضرورت ہوتی جا رہی ہے. ایک تو سوشل ویلیوز کے لیے، دوسرے مسلمانوں کی ایمان کی پختگی کے لیے. یہ اہم ہے کہ مسلمان اپنے نبی اور ان کی اہل بیت سے اٹوٹ محبت رکھیں، ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء سے، ان کے اصحاب سے، اور بالخصوص اہل بیت رسول سے. اس لیے کہ رب تبارک و تعالی کا فرمان ہے، جیسا کہ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ سورہ شورى 25ویں پارے کی آیت ہے. اور فی زمانہ ہر دور میں منکر حدیث آتے رہتے ہیں کہ رب تبارک تعالیٰ بڑا حکیم و کریم ہے. یہ امت پہ کرم بھی کیا اور حکمت سے کام بھی لیا کہ اے رسول، جو آپ نے دین پیغام دیا ہے اس کے اجر کے لیے آپ نہ کہیں، ہم آپ کی طرف سے حکم دیتے ہیں، آپ کی زبانی بلوانے لگاتے ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس آیت کریمہ کی ترجمہ و تفہیم کچھ اس طرح سے ہے کہ اے محبوب، کہ تم ان سے کہہ دو جو میں نے تم کو ہدایت کا پیغام دیا، میں نے جو تمہارے نجات کا راستہ دکھایا، میں نے جو تمہارے سامنے ہدایت کی روشنی پیش کی اور فرید دعوت و تبلیغ پیش کیا، میں اس کا کوئی اجر نہیں چاہتا، میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں تم سے اس کا کوئی ریوارڈ نہیں چاہتا، سوائے اس کے کہ تم میرے قربا، میری اہل بیت، میرے قرابت داروں کا خیال و پاس رکھو، ان سے محبت رکھو. بظاہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اگر ہم دیکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کی ولادت سے لے کے 40 سال تک عمر تک پہنچنا، پھر اعلان نبوت کرتے ہی جو قریش، جو مکے کے والے، جو صادق و امین کہتے تھے، وہی حضور علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن بن گئے. اذیتیں، تکلیفیں پہنچانے کی ایک حد توڑ دی. سارے انبیاء نے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، سب نے حق تعالیٰ کا پیام پہنچانے میں مشاکل اٹھائے، مگر جو تکلیفیں، جو اذیتیں حضور علیہ السلام کو پہنچائی گئیں وہ تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی. حضور علیہ السلام جس راستے سے گزرتے وہاں پر کانٹے بچھائے جاتے، جس راستے سے گزرتے پتھر سے پتھر برسائے جاتے، جس میں اتھر پتھر سے لہو لہان ہو جاتا، طائف کی وادیوں میں پیر جسم لہو لہان ہو جاتا، خون کے فوارے نکلتے جسم سے، سر مبارک رنجن ہوتا، کہیں کسی جنگ میں دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں،
सजदा करते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, और अबू जहल कह रहा है कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, कहीं से कोई ऊँटनी कट रही है, उसकी ऊँटने की उजली लेकर आओ ताकि मैं मोहम्मद अरबी पर डाल दूं। और ऐसे ही होता है, एक बदबख्त ऊँटनी की ओझली लेकर आता है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पुश्त पर डाल देता है। बेहद तकलीफ। नन्ही सैयदा फातिमा ज़हरा अपने बाबा की मोहब्बत में दौड़ती हुई आती हैं, उस ओझली को हटाती हैं। ये सारी मंजर जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम और सैयदा फातिमा ज़हरा, और तारीख़ उसकी भी गवाह है कि जो बदबख्त ने ओढ़नी लेकर आई थी ऊँटनी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बददुआ से उसका कैसा बुरा हाल हुआ। मगर आप देखते हैं ये सारे मसाइब शैब अबी तालिब में पहाड़ के दामन में 3 साल महसूर रहना, सारा शहर आपसे बाइकाट कर दे, सारा शहर आपका खाना पीना रोक दे। बनु हाशिम के बच्चे चमड़े और पत्ते खाकर जिंदा रह रहे थे, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, कहीं से कुछ स्मगल करके आपके करीबी रिश्तेदार जैसे साद बिन नबी वक्कास वगैरह कुछ ला देते तो वो दिनों चला, एक टाइम का खाना दिनों चलाते, एक टाइम खा लिए तो 2-2 3-3 दिन फाके कशी में। ऐसे मसाइब झेलने के बावजूद कोई अजर नहीं मांगा। मगर रब तबारक व तआला का फरमान देखो, ऐ महबूब, तुमने जो मशक्क़तें उठाई है, भले ही तुमने कोई अजर नहीं मांगा हो, मगर अजर तुम्हारी तरफ से, तुम्हारी उम्मत से हम मांगते हैं। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा, आप कह दे हमारी तरफ से कि मैं जो तुमको दीन का पैगाम दिया हूं कोई अजर नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरे अक़रबा से मोहब्बत करो। मगर यहाँ नबूवत का मिजाज भी तो देखो, रसूल अरबी का मिजाज भी तो देखो। मक्के के कुरैश हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत अबू तालिब के ज़रिए, वो अबी तालिब जो शैब अबी तालिब में पनाह दिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम को, सारी तकलीफ़ें उठाई हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए, उनके ज़रिए पैगाम देते हैं कि तुम अपने भतीजे से कह दो, मोहम्मद अरबी से कह दो कि तुमको सरदारी चाहिए, सरदारी दे देंगे, दौलत चाहिए, दौलत देंगे। अरब का मुंतखब हुस्न, जिस औरत पे तुमकी ख्वाहिश हो उस औरत से तुम्हारी निकाह में दे देंगे। खूबसूरत से खूबसूरत औरतें तुम्हारे सामने पेश कर जाएंगे। दौलत, सरदारी, हुस्न, हर किसी चीज की कमी नहीं रखेंगे। और बदले में ये नहीं कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप अपना दीन छोड़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा छोड़ दो। नहीं, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि तुम अपने दीन पर रहो, तुम अपने अल्लाह की इबादत करते रहो, मगर हमारे माबूद को बुरा ना कहो, हमारे दीन को बातिल ना कहो, हमारे दीन को बातिल ना करो। मगर ये तो हो नहीं सकता। मगर तारीख गवाह है, तारीख के पन्नों में आज भी दर्ज है कि कैसा सुभान अल्लाह, कैसा प्यारा जवाब कि आज तक लिखा हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक हाथ में मेरे सूरज रख दिया जाए और एक हाथ में मेरे चांद रख दिया जाए तो फिर भी मैं अपने पैगाम से, अपने मैसेज से वापस नहीं जाऊंगा। जो बात हक है वो कह कर रहूंगा। वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आ गया और बातिल को जाना होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने पैगाम से पीछे नहीं हटे, अपना पैगाम देते रहे। कुरैश की सारी वो रसूल जिनके सामने ये सारी पेशकश की गई और वो ठुकरा दिए, मगर अल्लाह तबारक व तआला यहाँ कह रहा है कि ऐ मोहम्मद, ऐ महबूब, आप उम्मत से अजर मांगो। हुजूर अलैहिस्सलाम अजर नहीं मांग रहे हैं और अल्लाह ताला कह रहा है कि अजर मांगो। इसमें फ़ायदा किसका? इससे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले भी कई अंबिया इकराम आए और सब ने अपना पैगाम दिया और सब ने यही कहा। आप कुरान में देखते हैं, इससे पहले भी कई आयतें हैं, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अल्लाह। हम जो तुमको दीन का पैगाम दे रहे हैं, हम तुमसे कोई अजर नहीं मांगते, हम अपना अजर अल्लाह से ले लेंगे। सारों का मिजाज यहाँ। मगर हुजूर अलैहिस्सलाम की अक़रबा से मोहब्बत आप देखते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं भाई कि भाई बुरा ना कहो,
आप नबूवत का मिजाज देखते हैं। यहाँ एक बहुत अहम पॉइंट मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, फिर ज़माना बहुत ज़रूरी है। आज का इस खराफाती दौर, सोशल मीडिया के दौर में, जहाँ कुछ अच्छाई की बात भी आप सुनते हैं, वहाँ बहुत सारी बुराई भी बातें होती हैं। यहूदी एजेंडे सेलिब्रिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया में देखा हूँ कि कई लोग जो नाम से तो मुसलमान होते हैं मगर गणपति की विश कर रहे हैं। यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम का मिजाज तो देखो। कुरैश, कुफ़ार कुरैश हुजूर अलैहिस्सलाम को ऑफर दे रहे हैं कि ए मोहम्मद अरबी, आप भले ही अपने दीन पर रहें, आप भले ही अपने दीन पर रहें, मगर हमारे माबूद को बुरा ना बोले, हमारे माबूद को बातिल ना ठहराएं। आप भले एक अल्लाह की इबादत करें मगर हमको 100 खुदा की इबादत करने दे। मगर रसूल अरबी उनसे इनकार कर रहे हैं। इस्लाम ये नहीं कहता कि दूसरों को बुरा कहो। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम अपने दीन पर, हम अपने दीन पर, ये इस्लाम का मिजाज है। मगर ये नहीं कि हम अंदर से अल्लाह की इबादत करेंगे, ऊपर से नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक तुम्हारे माबूद के साथ शरीक भी रहेंगे, तुमको गणपति की मुबारकबाद देंगे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यानी वो कुफ्र या जो हैं। फेसबुक पे मैं देखता हूँ, नाम तो मुसलमान होते हैं, कोई बदकार सेलिब्रिटी, कोई बदकार एक्टर किसी बुत के आगे नाचता है तो मुसलमानों तुम अपना ईमान बचाओ। तुम्हारा आइडियल वो बदकार खान, वो कोई बदकार सेलिब्रिटी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा आइडियल सैयदुल मुरसलीन सरकार मदीना सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। याद रखो, तुम्हारे आइडियल सैयदुल अंबिया है। कोई बदकार एक्टर नहीं, कोई बदकार क्रिकेटर नहीं, कोई बदकार सेलिब्रिटी नहीं। अपने ईमान की हिफाजत करो। वो रसूल जो हमारी खातिर इतनी अजियतें सहे, वो रसूल जो हमारी खातिर इतनी मुसीबतें सहे, वो रसूल जो आखिरत में सजदे से सर नहीं उठाएंगे जब तक कि उनकी उम्मत बख्शवा नहीं जाएगी। अब उम्मत इतनी बेवफा हो नहीं सकती कि उनके नबी का फरमान को ठुकराएं और शिर्क में मुब्तला हों, अपने दीन से सौदेबाजी करें। ये हो ही नहीं सकता कि आप इधर भी रहें उधर भी रहें। आप दिन भी माने, दिन को भी माने और रात को भी माने। अगर देखिए, जब हक बात करनी है तो बातिल को तो बुरा लगेगा। अगर आप दिन की तारीफ करते हैं तो रात को बुरा लगेगा। अगर आप पानी की मिधत सराही करते हैं तो आग को बुरा लगेगा। अगर आग की तारीफ करते हैं, आग की सिफतें बयान करते हैं तो पानी को बुरा लगेगा। मूसा, जैसे कि मूसा, एक तरफ मूसा है, एक तरफ फिरौन है, एक तरफ आदम है, एक तरफ शैतान है। जहां अंबिया की तारीफ होगी वहां मर्दूदीन की रद होगी। इस तरीके से आप दोनों तरफ नहीं, आप इधर भी अच्छे उधर भी अच्छे। ये अव्वल दर्जे की मुनाफिकत है, इसी दौर का है। देखो दोस्तों, आज जो जिक्र हुसैन कर रहे हैं, जहां यजीद पलीद की फासिक और बदकारी को हम जाहिर करते हैं तो वहां कुछ मुनाफिकों को तकलीफ हो जाती। नहीं, यजीद को बुरा नहीं करना चाहिए। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का कातिल, जो काबे की बेहुरमती मक्के शहर की बेहुरमती करने का अहल, जो जिम्मेदार, जो सबसे बड़ा जिम्मेदार, उसको बुरा ना कहा जाए। देखो, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर, जैसा कि मैंने कहा आपको, रब तबारक तआला कह रहा है कि ए महबूब, कहीं ऐसा ना हो कि मुनाफिकीन तेरी हदीसों की रद्द ना करें, जैसा कि होता है। आज ये दौर आ गया है, बुखारी शरीफ में भी शक किया जा रहा है। सहीह अलबानी है बुखारी से अफजल, इसलिए कि यह कहा जाता है कि भाई बुखारी शरीफ तो करीब 200 साल बाद, जो करीब 200 साल बाद आए उनको सही नहीं मालूम, जो 1400 साल बाद आया उसको सही मालूम। सही बुखारी काफ़ी नहीं, सही अलबानी ज़रूरी हो गई है। इसलिए रब ताला हकीम व करीम है। उसने कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ हबीब, आप ना कहें, हम कहते हैं। तो ऐसे अक़रबा, ऐसी अहले बैत जिनका अजर मांगा जाए तो उसकी तरबियत कैसी होगी, उसकी तरबियत कैसी होगी। यहाँ हुसैनी ट्रेनिंग देखो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे पहले के अंबिया को देख रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम
नूह अलैहिस्सलाम अपना बेटा काफिर मरा, आप कहेंगे कि भाई नूह का बेटा तो काफिर मरा। कुरान साफ कह रहा है इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये आपके अहल में से नूह नहीं है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं क़ाला मिन ज़ुर्रियती ला यनालु अहदुज़ ज़ालिमीन, मेरी अहल मेरी अहल बैत वो है जो जुल्म ना की हूं, जो अपने आप पर जुल्म ना की हूं, जो गुनाहगार ना हो, तो फिर मैं उनका रहबर हूं, फिर उनका मैं निगहबान हूं। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो काफिर था, उसकी जिम्मेदारी न नूह ले रहे हैं न अल्लाह ले रहा है। तो अब जब जिसका अजर मांगा जा रहा है, तो अल्लाह ने पहले से प्लान कर रखा है कि उनको भी उसी तरीके की ट्रेनिंग दे जाए। तो इसमें फायदा कैसा, वो नबी करीम, उनका कोई जाती फायदा तो हो नहीं सकता, जो दुनिया की कभी कोई लालच रखे ही नहीं, जो पेट पर पत्थर बांध कर दीन की तबलीग करे, दौलत को ठुकरा दिए, हुस्न को ठुकरा दिए, सरदारी को ठुकरा दिए। ऐसे रसूल कैसे मांगेंगे, कैसा कोई अजर मांगेगा। खुद रसूल की अहले बैत कहती है, कुरान उसका गवाह है कि 3 दिन मुतवातिर रोजे रहे। एक दिन मिस्कीन आ गया, उसको खाना दे दिया। एक दिन फकीर आ गया, उसको अपना खाना दे दिया। एक दिन असीर आ गया, उसको खाना दे दिया। युफ़ूना बिन्नज़्र व यख़ाफ़ूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमूना अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। एक दिन यतीम आ गया, एक दिन मिस्कीन आ गया, एक दिन असीर आ गया, सबको खाना दे दिए और उसके बदले में कोई अजर नहीं मांगे। ला नुरिदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, अजर तो दूर की बात है, शुक्रिया के कलमात के भी मोहताज नहीं। ला नुरिदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, उनको तो जजा और शुक्र के कलमात के भी मोहताज नहीं, वो जो करे अल्लाह की राह में किए। मगर यहाँ अल्लाह जब अजर मांग रहा है तो इसमें फायदा किसका, रसूल करीम जो पूरी जिंदगी बगैर किसी अपने मफाद के पैगाम दिए, उनकी अहले बैत जो बगैर किसी अपने मफाद के पूरी जिंदगी गुजारी, अब जब उनको कोई फायदा नहीं तो फिर ये अल्लाह किस लिए डिमांड कर रहा है। मुसलमानों, मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें फायदा तुम्हारा है, इसमें अजर तुम्हारा है, इसलिए कि रब तबारक व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत ऐसे आला मकाम से पैदा किया, ऐसे नवासे हैं जो पैदा होते ही जन्नत के सरदार बने। कल जब तुम्हारी औलाद जन्नत में जाने की ख्वाहिश रहेगी, वहां इमामत रहेगी हसन और हुसैन की, तुम चाहोगे तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहनें जन्नत में दाखिल होंगी, तो वहां सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रहेंगी, सारी जन्नती औरतों के सरदार। तुम चाहोगे मोमिन मर्दों में एक तुम्हारा नबी के साथ मौला हो, तो वहां मौला अली मुश्किल कुशा इमामुल मशारिक वल मगारिब सैयदना अली इब्न अबी तालिब है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत मुक़द्दसा ऐसी अजीम, और देखो ट्रेनिंग देखो कैसी हो रही है, बचपने से ट्रेनिंग कैसी हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों प्यारे शहजादों को कंधों पर बिठाकर जा रहे हैं, बाजार से जा रहे हैं, और उधर से सैयदना उमर तशरीफ ला रहे हैं। आकर कह रहे हैं क्या वाह वाह वाह, क्या खूब सवार है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम पलट कर उमर से कहते हैं, सैयदना उमर से कहते हैं, क्या उमर, सवार भी तो देखो कैसा है, सवार भी तो देखो कैसा है। और शहजादे देखते हैं कि रास्ते में ऊंट है और ऊंट को नकेल लगी हुई है, रस्सी बनी हुई, और जो ऊंट पर सवार है वो रस्सी पकड़ के चल रहा है। तो शहजादे अपने नाना से कहते हैं, जद्दी हमको भी ऐसी वो चाहिए, हमको भी ऐसी नकेल चाहिए जिसको हम ऊंट चला सकें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी अंबर जुल्फ़े अपने नवासों को दे देते हैं, ये लो तुम्हारी रस्सी, ऊंट की रस्सी, और खुद ऊंट बन जाते हैं नवासों के लिए। बता रहे हैं, दर्ज दे रहे हैं, कल उम्मत की डोर तुम्हारे हाथों में होगी और उम्मत की पैरवी तुम्हारे हम और दुनिया देखती है। इमाम हसन जैसे ही मौला अली के दौर खिलाफत से अमवी फितने उठने लगे, फितनों की एक बरसात लगी, बगावतें होती रही, और इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो ग्रोहों में मुसलमानों की जान की हिफाजत के लिए फैसला करते हैं, और दीन को बचाने की खातिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी शहादत पेश करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं,
और सजदे में जाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर, एक रिवायत में है कि दोनों शहजादे, और ऐसा कई बार हुआ, एक बार नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम की पुश्त पर बैठ जाते हैं। ये तिरमिजी की हदीस है और बेहिसाब अहादीस की कुतुब में इसमें किसी को शक ही नहीं। एक आम हालत में देखिए, एक आम हालत में यह है कि बच्चों को पीछे रखना चाहिए। आप सूरह मोमिनीन की तफसीर पढ़ें या किसी खुतबे में पढ़े, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। सलात की, नमाज की शर्त यह है कि उसमें खुशू और खुज़ू हो। यहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में जाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर हुजूर की पुश्त पर बैठ जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम सजदा तवील कर देते हैं, इतना तवील कि एक सहाबी को दिल में खतरा आया कि कहीं हुजूर अलैहिस्सलाम की रूह परवास तो नहीं की गई, और वो खुद कहते हैं कि मैंने इतना लंबा सजदा देखा, इतना लंबा जब सजदा हो हुजूर उठ ही नहीं रहे सजदे से, तो मैं अपनी मुट्ठी उठाकर देखता हूँ कि हुसैन हुजूर अलैहिस्सलाम की पुश्त पर बैठे हैं। सलाम फेरने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम कहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह आपने सजदा बड़ा तवील कर दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम कहते हैं, तुमने देखा नहीं कि हुसैन मेरी पुश्त पे थे, हुसैन मिन्नी व, उसके बाद कहते हैं, इसी मौके पर कहते हैं कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और फरमाते हैं, मन अहब्ब हुसैना फ़क़द अहब्बनी, मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह, मन अग़ज़ब हुसैना फ़क़द अग़ज़बनी, मन अग़ज़बनी फ़क़द अग़ज़ब अल्लाह। जिसने हुसैन को चाहा उसने मुझे चाहा, जिसने मुझे चाहा उसने अल्लाह को चाहा, जिसने हुसैन से गजब किया उस पर मुझे गुस्सा आया, और जिस पर मुझे गुस्सा आया उससे रब तबारक तआला नाराज है, उससे दुश्मनी है हुसैन की। हुजूर अलैहिस्सलाम यहाँ ऐलान कर दे रहे हैं कि हुसैन की मोहब्बत मेरी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, हुसैन मिन्नी। मगर यहाँ देखो दोस्तों, हुसैन मिन्नी व अना मिनल मुसैन से मतलब सिर्फ यहाँ रिश्ता और कराबत तो है ही है, ये तो है। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम से ये भी बता रहे हैं, हुसैन की सीरत मुझसे है, हुसैन सिर्फ मैं नहीं, हुसैन मेरा किरदार हुसैन में है, हुसैन की सिफत मेरे हैं। जब जो हुसैन की मोहब्बत का दावा करने वाला है, हुसैन से मोहब्बत करने वाला, हुसैन के नाना से मोहब्बत करने वाला कभी कोई बेईमानी नहीं करेगा। हुसैन से मोहब्बत करने का दावा करने वाला कोई गैर शरई हरकत कर नहीं सकता। हुसैन से मोहब्बत करने वाला कोई गैर शरई फेल नहीं कर सकता। हुसैन से मोहब्बत करने वाला किसी नमाज को नहीं छोड़ सकता, फराइज को नहीं छोड़ सकता। वो इस्लाम का पाबंद रहेगा, वही हुसैन का सच्चा गुलाम और हुसैन के नाना का गुलाम है। यहाँ पर और जैसे ही बढ़ते गया, अमीर माविया का इंतकाल होने से पहले अमीर माविया ने अपने बेटे यजीद को अपना मुंतखब कर दिया। अब यहाँ पर जब हुजूर इमाम हसन की शहादत हुई, जहर देकर अमवियों ने जहर दे दिया, फिर उस अमवी से एक जालिम बादशाह बना यजीद। वो जैसे हुकूमत में आया, सबसे पहले हुक्म लगाया हुसैन इब्न अली, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर, सबसे बैत लो, मगर उन सबसे पहले इन तीनों को। अब यहाँ पर कुछ मुखलिसीन ये कहते हैं कि नहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो ये थी वो थी। हाकिम कौन था? वो कूफियों ने ऐसा कर दिया। वो कूफियों का जनरल कौन था? इब्न ज़ियाद कौन था? यजीद का चचेरा भाई। उमर इब्न साद कौन था? वो भी तो कुरैश का ही था। शिमर कौन था? खैर बहरहाल दूसरी मुहर्रम को हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहादत की गई। कूफियों ने धोखा देकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया। कूफियों का मिजाज में ही धोखा था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे की तरफ आए, एक एक बार जो वफादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफादारों ने दी, तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं देती। कुछ बदबख्तों का कहना है कि कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते,
कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। अगर जन्नत का सरदार कॉम्प्रोमाइज़ करता तो कौन कहता कि यूरोप में शराब बेचना हराम है? तुम भी तो कह सकते थे कि भाई हुसैन इब्न अली नवासे रसूल ने कॉम्प्रोमाइज़ किया यजीद से, एक फासिक मक्कार से फाकर किया, तो तुम्हारे लिए भी क्या बोलते यूरोप में शराब बेचना जायज़ हो जाता? कौन कह सकता था कि यूरोप में अमेरिका में रहकर भी नमाज की पाबंदी करो, शराब से बचो, बदकारी से बचो, किसी दौर में भी रहो, इस्लाम पर कायम रहो, और इस्लाम पर रहने का एक तरीक़ मिलती। हम किसी काफिर दो मुल्क में भी रहते, किसी जालिम हुकूमत में रहते, तो भी हमको तरीक़ मिलती और हक़ बोलने की, और हक़ बोलने का जज्बा रहता, हक़ बोलने का दलील रहती हमारे पास, इसलिए कि हमारे पास नज़ीर है। उल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, हमको ऐसी अहले बैत से मोहब्बत का सवाल किया गया है जिनकी पूरी ज़िंदगी हमारी दुनिया की ज़िंदगी के लिए मिसाल है और आखिरत के भी मिसाल है। और हम देखते हैं कि करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अलैहिस्सलाम के असहाब ने जो कुर्बानी दी, 10 मुहर्रम का मक़ता, 10 मुहर्रम से पहले जब लश्कर यजीद दौड़ रहा था तो कमर बसीता कुमै जो हज़रत अली के खास सहाबी थे, 90 साल की उम्र में भी पत्थर बांध कर उमर में यजीदियों से भिड़ गए और वहीं शहीद हो गए। जब इमाम हुसैन ने कहा कि उनकी यजीद की दुश्मनी मुझसे है, तुम एक एक कर कर रात में चले जाओ, तुम एक एक करके रात में चले जाओ, मैं उनसे देख लूँगा। सिर्फ मेरे ख़ानदान वाले नहीं, जो गैर है उनके भी, ना ख़ानदान वाले ना गैर, कोई जाने को राज़ी नहीं था। तो इमाम हुसैन ने कहा मैं चिराग बुझाता हूँ, अगर तुमको शर्मिंदगी हो रही मुझसे तो मैं चिराग बुझा देता हूँ, और तुम एक दूसरों का हाथ पकड़कर सहरा में अलग निकल जाओ। सब ने कहा कि हम इमाम, ऐसी ज़िंदगी हमको प्यारी नहीं जहाँ पर इमाम हमारे साथ ना हो। कमर बसीता मुस्लिम बिन औजा कहते हैं, क्या इमाम अगर वो नेज़े बरसाएंगे तो हम नेज़ों से रोकेंगे, अगर वो तीर बरसाएंगे तो तीर से रोकेंगे, अगर वो तलवार बरसाएंगे तो हम अपनी तलवारें आप लेंगे, मगर आप पे आँच आना देंगे। और ऐसे हुआ। 10 मुहर्रम को जंग मुकर्रर हुई, 10 मुहर्रम की जंग मुकर्रर हुई, और एक एक करके सारे जानिसार पहले शहीद हुए। जब तक ज़ुहैर इब्न क़रन हुर थे, मुस्लिम बिन औजा थे, सारे फिदाइन थे, जब तक अहले बैत रसूल पर कोई आँच न आ सकी। फिर हज़रत बरदार, फिर आप शहादतों के वाक़ा सुने होंगे, सैयदना अली अकबर, अली असग़र और इमाम कासिम बिन हसन एक एक करके शहीद हो गए। और 10 मुहर्रम का ही मौका था। बीबी उम्मे सलमा इस वाक़े से मुत्तला थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम इससे पहले फरमा चुके थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से हदीस रावत है कि उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैं एक बार हुज़ूर के हुजरे में गई तो क्या देखती हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ज़ारो ख़तार रो रहे हैं। मैंने दरियाफ़्त किया, या रसूलल्लाह, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, आप किस बात और ऐसी क्या बात हो गई जो आप इतने ज़ारो ख़तार रो हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम सलमा, तुम गवाह रहना कि अभी जिब्राइल मेरे पास आए और ये शीशी करबला की मिट्टी देकर गए हैं, जिस दिन मेरा हुसैन शहीद होगा ये मिट्टी लाल हो जाएगी। और तारीख़ वही तो वक्त दोहराई, और जिस वक्त ये मिट्टी लाल हुई आसमान सुर्ख हो गया। सलमा समझ गई कि इमाम हुसैन करबला में शहीद हो गए हैं। आज अगर हम तारीख़ के औराक़ पर भी जाएं तो हम देखते हैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी से अजर मांगा गया। नबी की ऊँटनी, उनकी कौम ने उस ऊँटनी का सही तरीके से देखभाल नहीं किया, जो वादा किया गया था वो नहीं हुआ, तो उन पर अजाब नाजिल हो गया। आज हम देखते हैं कहीं मॉब लिंचिंग होती है, कहीं आपको टेररिस्ट करार दिया जाता है, दुनिया में ज़लील वक़ार हो रहे हैं, इसलिए कि तुमको यजीद से मोहब्बत है। उम्मत में कुछ ऐसे भी आ गए हैं जहाँ यजीद के फ़ज़ाइल तो बयान करते हैं और नवासे रसूल से बग़्ज़ रखते हैं, नवासे रसूल से अदावत रखते हैं। इनकी सारी कोशिश होती है। अभी तो एक मौलाना को पाकिस्तान से निकले हैं, उनको सारी कुएँ याद आ गई। 1400 साल बाद सारे कुएँ बोली, जिसको हम हैदराबाद बोलते हैं, सारे बोलियाँ ट्रेस करते बैठ गए कराची में बैठ कर।
کہ وہاں کنواں تھا، فرات پہ جانے کی تو حاجت ہی نہیں تھی، سارے کنویں موجود تھے، سارا کچھ پانی تھا، وہ ایک اتفاق تھا، ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، ہو گیا۔ کربلا کا اتنے سے واقع، ان کی پوری عمر اسی میں لگی رہے گی کہ کربلا کے واقعے کو میک اٹ شارٹ، سمپل، وہ شہادت کو بڑی نہ بناؤ، چھوٹی سے چھوٹی کر دو، ان کی پوری عمر اسی میں لگ جائے گی۔ اب تم کو ذلت نہیں تو کیا عزت ملے گی؟ اگر تم تاریخ میں دیکھیں، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، نور الدین زنگی، عمر مختار، عبد القادر الجزائری، یہ تو نیک مجاہد بادشاہ تھے۔ اگر کوئی خاص ظاہری طور پہ اسلام پر بہت زیادہ کارآمد نہیں بھی، اگر مغلیہ سلطنت، خلیج سلطنت، جتنے ڈائناسٹی دیکھیں، ان میں کیا تھا؟ ان میں تو کئی ایسے دکھیں گے کہ جن کا کیا بولتے صحیح عمل بھی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اللہ ان کو نصرت و فتح دی، اس لیے کہ ان کے قائد صحیح تھے، ان کی نسبت اپنے نبی سے، اپنے نبی کی اہل بیت، اپنے نبی کے خلفاء سے صحیح نسبت تھی، ان کے قائد پکے تھے۔ یہ خارجی فطور ان کے دماغوں میں نہیں تھا، یہ خارجی فطور نہیں تھا۔ اللہ یہ خارجی فتنوں سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو محبین اہل بیت میں شمار کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ، اللہم یا رب اجعل سیدنا الحسین واخی وامی وابی وجدی وبنی فرج عنا مما نحن فی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔